رات کا اندھیرا ایران کے قدیم شہر پر چھا چکا تھا۔ بازار بند ہو چکے تھے، گلیاں سنسان ہو چکی تھیں اور سڑکوں پر صرف چند چراغوں کی روشنی باقی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک مزدور بیٹھا تھا جس کا چہرہ سخت محنت کی وجہ سے جھریوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص اطمینان جھلک رہا تھا۔ یہ شخص دن بھر اینٹیں اٹھاتا، دیواریں بناتا اور اپنی مزدوری سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں سب سے بڑی دولت تھی اور خدا پر یقین۔ وہ جانتا تھا کہ محنت کا صلہ دینے والا صرف خدا ہے اور وہ کبھی کسی کا رزق کم نہیں کرتا۔ ایک دن جب سورج آسمان پر اپنی روشنی پھیلا رہا تھا، وہ مزدور حسب معمول کام پر گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک معمولی سی روٹی تھی جو اس کی بیوی نے صبح دی تھی تاکہ دوپہر کو کام کے دوران کھا سکے۔ وہ دیوار بنانے میں مصروف تھا کہ اچانک ایک فقیر اس کے قریب آیا۔ فقیر نے کمزور آواز میں کہا، بھائی، کئی دن سے بھوکا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دے دو۔ مزدور نے فقیر کی حالت دیکھی اور ایک لمحے کے لیے اپنی روٹی کی طرف دیکھا۔ یہی روٹی اس کا پورے دن کا سہارا تھی، لیکن پھر اس کے دل میں خدا کی رضا کا خیال آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ روٹی فقیر کو دے دی اور خود پانی پی کر دوبارہ کام میں لگ گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے مزدور ہنسنے لگے۔ ایک نے مذاق کرتے ہوئے کہا، بھائی، تم نے اپنی واحد روٹی بھی دے دی، اب سارا دن بھوکے کیسے رہو گے؟ خدا کوئی خزانہ تو نہیں بھیجے گا؟ مزدور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ جو میں نے دیا ہے وہ خدا کے خزانے میں محفوظ ہو چکا ہے۔ سب لوگ حیرت سے اس کی بات سن رہے تھے، لیکن کسی نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ مزدور نے اپنی بھوک کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مصروف رہا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کا دن اس کے لیے کوئی خاص سبق لے کر آیا ہے۔ مزدور نے اپنی واحد روٹی فقیر کو دے دی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی پریشانی یا افسوس نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بھوک اس کے لیے ایک آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی چیز خدا کی رضا تھی۔ وہ اپنے کام میں مشغول رہا اور باقی مزدوروں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ سورج سر پر آ چکا تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی اور مزدور کی توانائی بھی کم ہونے لگی تھی۔ اس کا پیٹ خالی تھا، لیکن اس کا دل مضبوط تھا۔ وہ مسلسل اینٹیں اٹھا رہا تھا، دیواریں بنا رہا تھا اور اپنے پسینے میں شرابور تھا۔ دوسرے مزدور اپنی روٹیاں کھا رہے تھے، کچھ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور کچھ سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے تھے۔ ایک ساتھی مزدور جو اسے کافی عرصے سے جانتا تھا اس کے پاس آیا اور کہا، بھائی، تم واقعی عجیب آدمی ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے وہ روٹی دے دی لیکن پھر بھی سکون میں ہو۔ آخر تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ مزدور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھوک تو لگی ہے، لیکن مجھے خدا پر یقین ہے کہ وہ میرا بندوبست ضرور کرے گا۔ مجھے بس اس کے فیصلے کا انتظار ہے۔ یہ سن کر مزدور نے حیرانی سے سر ہلایا اور اپنے حصے کی روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا، لیکن مزدور اپنے یقین پر قائم رہا۔ کچھ دیر بعد ایک رئیس آدمی گھوڑے پر سوار وہاں سے گزرا۔ وہ ایک بڑا تاجر تھا جو اس علاقے میں زمین کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ چند نوکر بھی تھے جو اس کے لیے مختلف جگہوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ رئیس نے کام کرتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اس مزدور پر جا رکی جس کے چہرے پر تھکن کے باوجود سکون تھا۔ رئیس نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا، ان مزدوروں سے کہو کہ ہمیں ایک خاص کام کے لیے محنتی اور ایماندار آدمی چاہیے، جو سب سے بہتر ہو اسے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ نوکر مزدوروں کے پاس آیا اور اعلان کیا، رئیس صاحب کو ایک ایماندار مزدور درکار ہے، جو سب سے زیادہ محنتی اور بھروسے مند ہو، اسے فوراً بلایا جائے۔ معاوضہ بھی عام مزدوروں سے زیادہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی سب مزدور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر کوئی اپنی تعریف خود کرنے لگا، لیکن وہ مزدور خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کو اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اعمال خود اس کے لیے بولتے ہیں۔ رئیس کا نوکر خود آگے بڑھا اور مزدوروں کے کام کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظر اس مزدور پر پڑی جو مسلسل کام کر رہا تھا، بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی توقف کے،
वो पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन इसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नौकर ने रईस से जाकर कहा, जनाब, वो शख्स जो नीली कमीज में है, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार है। वो खामोशी से काम में मगन है और उसने आज तक कोई शिकायत नहीं की। ये सुनते ही रईस ने इसे अपने पास बुलाने का हुक्म दिया। मजदूर को बुलाया गया और जब वो रईस के सामने पहुंचा तो रईस ने इसे गौर से देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने काम में शामिल कर सकता हूं। मुआवजा भी आम मजदूरों से ज्यादा होगा और तुम्हें ज्यादा बेहतर मौके मिलेंगे। क्या तुम्हें कबूल है? ये सुनकर मजदूर हैरान रह गया। वो जो चंद घंटे पहले एक रोटी से भी महरूम था, आज उसे एक बड़े काम की पेशकश हो रही थी। उसने नजरें आसमान की तरफ उठाईं और दिल में कहा, ए खुदा, तेरा शुक्र है, तूने मेरी मेहनत का सिला दिया। मजदूर रईस के सामने खड़ा था। इसके दिल में खुशी, हैरत और शुक्रगुजारी के जज्बात एक साथ मौजूद थे। वो जो चंद लम्हे पहले एक रोटी के लिए मोहताज था, आज उसे एक बड़े रईस की जानिब से इज्जत और अच्छे मुआवजे के साथ काम की पेशकश हो रही थी। रईस ने दोबारा मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरा काम कबूल हो तो आज से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मजदूर ने नजरें झुकाईं और आजिजी से जवाब दिया, जनाब, मैं सिर्फ एक आम मजदूर हूं। मैं मेहनत करना जानता हूं, लेकिन मैं दौलत या शोहरत की ख्वाहिश नहीं रखता। मेरा यकीन खुदा पर है, वही सबसे बड़ा रिस्क देने वाला है। अगर आपको वाकई किसी ईमानदार मजदूर की जरूरत है तो मैं हाजिर हूं, लेकिन मेरा उसूल यही रहेगा कि मैं अपनी मेहनत का सिला सिर्फ अपनी ईमानदारी से हासिल करूंगा, न कि किसी चापलूसी या धोखे से। ये अल्फाज सुनकर रईस का चेहरा हैरत और खुशी के मिले जले तासुरात से चमक उठा। उसने अपने नौकरों की तरफ देखा और कहा, ये देखो, ये शख्स वाकई नायाब है। दुनिया में लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये अपनी ईमानदारी को सबसे कीमती चीज समझता है। यही लोग असल में कामयाब होते हैं। रईस ने मजदूर को अपने साथ आने को कहा। मजदूर ने अपने साथी मजदूरों को देखा जो हैरत और रश्क के साथ इसे देख रहे थे। कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, कुछ के दिल में हसद और कुछ के चेहरों पर वही पुरानी बेएतबारी, जैसे कि कह रहे हों, देखते हैं ये मौका कब तक चलता। मजदूर ने सबको अलविदा कहा और रईस के साथ रवाना हो गया। रास्ते में रईस ने इससे पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कुछ मालूम है? मजदूर ने सर झुकाते हुए कहा, जनाब, मैं एक आम आदमी हूं, मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन रखता हूं, किसी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। रईस मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम हाजी इसहाक है, मैं इस शहर का एक बड़ा ताजिर हूं। मैं हमेशा अपने कारोबार में ईमानदार और मेहनती लोगों की तलाश में रहता हूं। आज तुम्हारी सच्चाई और सब्र को देखकर मुझे लगा कि तुम्हें एक बड़ा मौका दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे तिजारती काफिले में शामिल हो, जहां तुम्हें न सिर्फ अच्छा मुआवजा मिलेगा बल्कि तुम्हें सीखने के मौके भी मिलेंगे। ये सुनकर मजदूर को एक लम्हे के लिए यकीन न आया। वो जो कल तक ईंटें उठाता था, आज एक बड़े ताजिर के काफिले में शामिल होने जा रहा था। ये सिर्फ खुदा पर ईमान और उसके सब्र का सिला था। उसने दिल में शुक्र अदा किया और आजिजी से कहा, जनाब, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। रईस ने खुश होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही बात मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद आई। मेरे साथ चलू, तुम्हारी मेहनत और ईमान तुम्हें कहां ले जाएगा, तुम खुद देखोगे। मजदूर ने रईस हाजी इसहाक की पेशकश कबूल कर ली और उसके काफिले के साथ चल पड़ा। रास्ते में वो हैरानी से रईस के सामान और उसके तिजारती काफिले को देख रहा था। ऊंटों पर भारी भरकम सामान लदा हुआ था। कुछ लोग काफिले के साथ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे और हर शख्स अपने मखसूस काम में मसरूफ था। मजदूर ने दिल में सोचा, ये सब कुछ मेरे लिए नया है। मैं तो हमेशा ईंटें उठाता था, मगर आज मुझे एक ऐसे सफर पर भेजा जा रहा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। काफिले के एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर, जो रईस के खास मुलाजिमों में शामिल था, मजदूर के करीब आया और कहा, भाई, तुम खुशकिस्मत हो कि रईस ने तुम्हें अपने साथ शामिल किया है।
यह काम आसान नहीं, लेकिन अगर तुम ईमानदार और मेहनती हो तो बहुत आगे जा सकते हो। मजदूर ने आजिजी से सर झुकाया और कहा, मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन रखता हूं। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं इसे पूरे दिल से निभाऊंगा। काफिला चलता रहा और जल्द ही वो शहर की सरहद के करीब पहुंच गया। रईस हाजी इसहाक ने अपने काफिले को एक बड़ी सराय के करीब रुकने का हुक्म दिया ताकि लोग कुछ देर आराम कर सकें और ताजा दम होकर आगे बढ़ सकें। मजदूर ने फौरन मौका का फायदा उठाया और रईस के घोड़े के करीब जाकर उसकी देखभाल में मसरूफ हो गया। ये देखकर रईस ने अपने साथियों से कहा, देखो, यही वो खूबी है जो मैंने इस शख्स में देखी थी। इसे किसी ने नहीं कहा कि वो मेरा घोड़ा संभाले, मगर फिर भी ये काम कर रहा है क्योंकि ये जिम्मेदारी को समझता है। सराय के मालिक ने रईस को देखकर खुश आमदीद कहा और कहा, हाजी साहिब, अब के काफिले की आमद हमेशा हमारे लिए बरकत लाती है। बताइए, अब के लिए क्या खिदमत कर सकता हूं? रईस ने कहा, हमारे काफिले में एक नया शख्स शामिल हुआ है और मैं चाहता हूं कि वो यहाँ के उसूल और तिजारत के मामलात सीखे। इसके लिए तुम मेरे खास गुलाम अब्दुल से कहो कि वो उसे सब कुछ समझाए। सराय का मालिक मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा फैसला हाजी साहिब। अब्दुल एक समझदार और तजुर्बाकार आदमी है, वो इस नौजवान को जरूर अच्छा सिखाएगा। अगले दिन सुबह अब्दुल ने मजदूर को बुलाया और कहा, दोस्त, तुम अब सिर्फ एक मजदूर नहीं हो बल्कि एक ताजिर बनने जा रहे हो। तिजारत में मेहनत के साथ साथ अक्ल और समझदारी भी जरूरी होती है। अगर तुमने सीख लिया कि कैसे सौदे किए जाते हैं तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। मजदूर ने आजिजी से कहा, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं हर बात को गौर से सुनूंगा और दिल लगाकर सीखूंगा। अब्दुल ने काफिले के मुख्तलिफ तिजारती मामलात दिखाए, इसे बताया कि कैसे लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, कैसे भाव तय होते हैं और कैसे एक ताजिर को ईमानदारी और अक्ल दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मजदूर ने हर चीज को गौर से देखा और समझा और वो जल्द ही सीखने में माहिर होने लगा। चंद दिन बाद रईस ने इसे बुलाया और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद एक सौदा करो और देखो कि तुम तिजारत में कितने माहिर हो चुके हो। ये एक बड़ा मौका था। मजदूर, जो कल तक सिर्फ ईंटें उठाता था, आज एक ताजिर के तौर पर पहला कदम रखने वाला था। मजदूर के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। कल तक वो एक आम मजदूर था जो ईंटें उठाकर अपनी रोजी कमाता था, मगर आज उसे रईस हाजी इसहाक की जानिब से एक ताजिर के तौर पर पहला सौदा करने का मौका मिल रहा था। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और जोश था। वो जानता था कि यह सौदा सिर्फ कारोबार का एक हिस्सा नहीं बल्कि इसके लिए एक इम्तिहान भी था कि क्या वो वाकई एक अच्छा ताजिर बन सकता है या नहीं। रईस ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो, वो सामने एक ताजिर बैठा है जो कालीन फरोख्त कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इससे एक अच्छा सौदा करो और देखो कि तुम कितना बेहतर भाव ताव कर सकते हो। मजदूर ने इस बात में सर हिलाया और कालीन फरोश के पास पहुंचा। दुकान पर मुख्तलिफ रंगों और नक्शो निगार वाले कालीन तरतीब से लगे हुए थे। दुकानदार एक लंबे कद का शख्स था जिसकी दाढ़ी में चांदी झलक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मजदूर को खुश आमदीद कहा, आओ भाई, कौन सा कालीन पसंद करोगे? मेरे पास हर तरह के कालीन मौजूद हैं, बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन कीमत। मजदूर ने मुख्तलिफ कालीनों को गौर से देखा और एक सादा मगर खूबसूरत कालीन की तरफ इशारा किया। ये कालीन कैसा है? दुकानदार बोला, ये बेहतरीन ऊन से बना हुआ है, हाथ की कढ़ाई है और कीमत है 5 अशरफियां। मजदूर ने अपनी जेब में पड़ी अशरफियों को छुआ, फिर सोचने लगा कि उसे कैसे सौदा करना चाहिए। वो जानता था कि तिजारत में अच्छी कीमत लेना भी एक हुनर है और रईस ने इसे इसीलिए भेजा था कि वो ये हुनर सीखे। उसने नरमी से कहा, 5 अशरफियां बहुत ज्यादा है। मैंने बाजार में इसी तरह के कालीन 3 अशरफियों में देखे हैं। दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, भाई, तुम नया मालूम होते हो मगर सौदेबाजी में तेज हो। अच्छा, मैं 4 अशरफियों में दे सकता हूं, इससे कम नहीं। मजदूर ने रईस की बातों को याद करते हुए कहा, मेरे पास सिर्फ 3 अशरफियां हैं। अगर तुम वाकई अच्छा ताजिर हो तो तुम्हें मालूम होगा कि एक ईमानदार गाहक को कम कीमत में भी बेहतरीन चीज देनी चाहिए।
ये सुनकर दुकानदार ने हैरत से मजदूर की तरफ देखा, फिर एक लम्हे के बाद हंसते हुए बोला, शाबाश बेटा, तुमने अपनी बात बड़े अच्छे अंदाज में कही। तुम जैसे ईमानदार और समझदार गाहक के लिए मैं ये कालीन 3 अशरफियों में देने को तैयार हूं। मजदूर ने शुक्रिया अदा किया, कालीन उठाया और रईस के पास वापस पहुंचा। रईस ने जब सुना कि मजदूर ने कामयाबी से सौदा कर लिया है तो उसके चेहरे पर एक फखरिया मुस्कुराहट आ गई। शाबाश बेटा, तुमने न सिर्फ अच्छी कीमत पर सौदा किया बल्कि ईमानदारी के साथ भी मुआमला निभाया। यही वो खूबी है जो एक ताजिर को अजीम बनाती है। ये जुमला सुनकर मजदूर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इसे अब यकीन होने लगा था कि उसकी मेहनत और ईमान वाकई उसे एक बेहतर इंसान और कामयाब ताजिर बना रहे हैं। रईस ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम मेरे काफिले के अहम हिस्सा हो। तुम्हारे लिए मैंने एक और जिम्मेदारी रखी है जो तुम्हारी सलाहियतों को मजीद निखार देगी। वक्त गुजरता गया और मजदूर अब सिर्फ एक आम मजदूर नहीं रहा था। उसने तिजारत के उसूल सीख लिए थे और रईस हाजी इसहाक की रहनुमाई में वो एक बाएतिमाद ताजिर बनता जा रहा था। रईस ने इसे मजीद बड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी थीं और अब वो काफिले के इंतजामात में भी शामिल था। एक दिन रईस ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूं। तुमने हर काम दियानतदारी से किया है और ये साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक ज़हीन ताजिर भी हो सकते हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी पहचान बनाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अगले तिजारती सफर की क़ियादत करो। ये सुनकर मजदूर हैरान रह गया। लेकिन हाजी साहब, मैं तो बस एक आम आदमी हूं। मैंने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया। रईस ने मुस्कुरा कर कहा, हर कामयाब इंसान कभी न कभी आम ही होता है। असल फर्क ईमानदारी, मेहनत और सब्र से पड़ता है और ये तीनों खूबियां तुम में मौजूद हैं। मजदूर ने रईस की बात को दिल से कबूल किया और काफिले की क़ियादत संभालने के लिए तैयार हो गया। ये सफर निहायत अहम था क्योंकि इसमें कीमती सामान का लेन देन होना था। काफिला रवाना हुआ और मजदूर ने हर चीज का ध्यान रखा। उसने हर मामले में ईमानदारी को तरजीह दी और जब बाजार में अशिया की कीमतों पर बहस हुई तो उसने निहायत होशियारी से बेहतरीन सौदे किए। तिजारत के दौरान कुछ धोखाबाज ताजिरों ने इससे गलत मामला करने की कोशिश की, लेकिन इसकी ईमानदारी और समझदारी ने उनके इरादे नाकाम बना दिए। वो हर मौके पर रईस के सिखाए गए उसूलों पर कायम रहा और यूं इस सफर में काफिले को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। जब काफिला कामयाबी से वापस पहुंचा तो रईस ने सब ताजिरों के सामने मजदूर को बुलाया और कहा, यह शख्स अब सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा बल्कि एक मुकम्मल ताजिर बन चुका है। उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और अक्ल से यह साबित कर दिया है कि कोई भी शख्स अगर नेक नीति से काम करे तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। ये सुनकर मजदूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रईस के हाथ चूमे और कहा, यह सब खुदा की मेहरबानी और आपकी रहनुमाई की बदौलत मुमकिन हुआ। मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी को अपना उसूल बनाया और आज खुदा ने मुझे इसका बेहतरीन सिला दिया। कुछ साल बाद वही मजदूर खुद एक कामयाब ताजिर बन चुका था। उसने न सिर्फ ईमानदारी और मेहनत की मिसाल कायम की बल्कि दूसरे गरीब मजदूरों को भी बेहतर जिंदगी का रास्ता दिखाया। इसकी कहानी पूरे ईरान में मशहूर हो गई और लोग उसकी ईमानदारी और सब्र की मिसालें देने लगे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान सब्र, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने काम में लगा रहे तो एक दिन वो कामयाबी की आला मनाजिल तक जरूर पहुंचता है। खुदा पर यकीन और नेक नीति हमेशा कामयाबी का दरवाजा खोलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बरा करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मजीद लोग भी इस सबक आमोज कहानी से फायदा उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी दिलचस्प और मानी खेज कहानियां सुनने को मिलती रहें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है।